Hello guys, welcome to the next lecture of modern periodic table. In this lecture, we'll start with the periodic trends in physical properties. We are going to discuss a few physical properties like atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, and we'll also study their trends as we move from left to right of the periodic table or top to bottom of the periodic table. So प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और उनकी ट्रेंड्स across the table पढ़ना है. Okay, so the first property is the atomic radius, and I'm sure you have heard about atomic radius in your 10th standard, that as you move, first of all, what is an atomic radius? So atomic radius simply can be said it is nothing but the distance from the nucleus, the center, to the outermost shell. That will be called as the atomic radius, and you have studied in your 10th standard about atomic radius, that as you move from left to right of the periodic table, if you discuss atomic radius from left to right of the periodic table, the atomic size decreases, and if you discuss from top to bottom of the periodic table, the atomic radius increases. Okay, this is what you have done in your 10th standard. But guys, if you talk about a particular atom is a very small entity. You cannot just isolate it and try to measure its atomic radius. You cannot do that. Secondly, the outermost shells of a particular atom, the orbits of the particular atoms are not defined well. They don't have a fixed boundary, you can say. For example, if I ask you what is the electronic configuration of hydrogen atom, you will say the electronic configuration is 1s1, because the electron in an hydrogen atom stays in first shell. But if I ask you how many shells are there in hydrogen, then you have to say it has infinite shell, but the electron prefers to remain in first shell. So it can have an infinite shell, remains in the first shell. So that's the problem of measuring the atomic radius. कि कौन से shell तक distance लेना है. Thirdly, the third most difficult part of calculating atomic radius is that the atom the atomic radius basically change with respect to the bonding. मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो तो उसमें एक एटॉमिक रेडियस होगा एटम का. आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हो तो अगेन देयर विल बी एटॉमिक रेडियस ऑफ द आयन. वैन डर वाल रेडियस की बात कर रहे हो, और इफ यू टॉक अबाउट मेटालिक रेडियस, so in all different bonding state of a particular atom, the radii differs. So that is the reason you cannot express atomic radius in only one single term. You can express atomic radius as a covalent radius, or Van der Waals radius, metallic radius. You can discuss atomic radius in these terms. I'll give you an example to make you understand this thing, and it is very simple. Let's talk about chlorine. So chlorine in nature, it exists in the form of Cl2. It's a diatomic gas where two chlorine atoms basically overlap with each other. One chlorine atom overlap with one chlorine, and they share this pair of electrons with the opposite spin, and they will form a bond, and these are nothing but the nucleus. But when you calculate, if I ask you what is the atomic size of one chlorine atom, so how will you find the atomic size of one chlorine atom? Because this part is getting overlapped. So normally covalent radius कैसा find करते? It's a covalent bond due to the sharing of electrons. So कैसा find करोगे आप? You will find the internuclear distance, the distance between two nuclei, which is called as bond length. और उस बॉन्ड लेंथ को आप हाफ कर दोगे तो आपको एक एटम का रेडियस मिल जाएगा. ओके, बट सी प्रॉपर्ली, आपको जो भी रेडियस मिलेगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा. मतलब इतना पार्ट जो है वो आप मिस आउट कर जाओगे. Why? Because here the atoms are overlapping. They are sharing the pair of electron to form a covalent bond. They are overlapping here. So that's the reason you get a covalent radius little bit lesser than the actual radius. So if I talk about a covalent radius of chlorine, so the bond length of chlorine is 198 picometer. Okay, when you divide this by 2, the answer is 99 picometer. So 99 picometer is the covalent radius of an atom. So if I ask you what is a covalent radius, so covalent radius is nothing but the half of the
internuclear distance between two bonded atom, half of internuclear distance between two bonded atom, that will be called as covalent radius. But suppose if you take a chlorine molecule, आपने ये chlorine molecule लिया, बराबर सुनना, chlorine molecule लिया है, ये एक दूसरा chlorine molecule है, very close, यानी minimum distance, दोनों एक दूसरे के minimum distance पे आ गए, मतलब there will be a certain force of attraction between them, and that will be the least force of attraction. If you remember, that force is called as London or dispersion forces, that comes under the category of what? Van der Waals force, if you remember. So this is one of the chlorine molecule, this is the another chlorine molecule, and here you going to find out what you're going to find out here. See, this is the internuclear distance, this is the internuclear distance. Okay, that's fine. So ये जो होगा वो बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2 को हम लोग कोवैलेंट रेडियस बोल देंगे. ओके, दैट कम्स अराउंड 99, जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया. But try to understand, when these two chlorine molecules approaches very close to each other, they develop sudden force of attraction, and that force is the weakest force of attraction between them, that is called as Van der Waals force or dispersion force. ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. सो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक डिस्पर्शन लंडन फोर्स है, जो हम लोग ने स्टेट्स, if you remember from states of matter, that is the type of force between them. Okay, so when you try to compare their length, अब अगर आप इनकी लेंथ कंपेयर करोगे, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है क्लोरीन का, आप इनकी लेंथ कंपेयर करो, ये बॉन्ड लेंथ मिलेगा आपको बिटवीन टू एटम्स, टू adjacent atom, टू adjacent same atom, दोनों क्लोरीन ही है. ओके, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज, मिनिमम डिस्टेंस, ओके, इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते, तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच में. सो यू विल फाइंड अ बॉन्ड लेंथ हियर एंड यू डिवाइड इट बाय 2. सो यहां से आपको एक का रेडियस मालूम पड़ेगा. अब जो रेडियस आएगा वो होगा 175 पिकोमीटर. तो ये रेडियस को हम लोग वैन डर वाल रेडियस बोलेंगे क्लोरीन का. सो दिस इज द वैन डर वाल रेडियस. तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? व्हाई वी आर फाइंडिंग कोवैलेंट रेडियस, व्हाई वी आर फाइंडिंग वैन डर वाल रेडियस? सी, एटम्स आर इन द डिफरेंट स्टेट हियर. यहां पर दो क्लोरीन एटम आपस में बॉन्ड है, बॉन्डेड है आपस में. तो जब वो आपस में बॉन्डेड है तो उनके जो बीच का रेडियस है दैट विल बी हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ. और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. तो जब ओवरलैपिंग होगा तो ऑब्वियसली कुछ स्पेस एटम का दूसरे एटम की विसिनिटी में जा चुका है, जो आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट फाइंडिंग द बॉन्ड लेंथ एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2. ओके, सो इफ दिस टू हैंड्स आर वेरी क्लोज, आप इसके सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो वो हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस, बिकॉज एक मिनिमम डिस्टेंस पे है. लेकिन अगर मैं इनको ओवरलैप कर दूं लाइक दिस एंड यू फाइंड सेंटर्स का डिस्टेंस, ओके, सेंटर्स का डिस्टेंस फ्रॉम हियर, सो ऑब्वियसली आपको ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम ही मिलेगा. क्यों कम मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर ये जो पार्ट है, द इनिशियल पार्ट इज गेटिंग व्हाट ओवरलैप, दिस पार्ट इज गेटिंग, इतना पार्ट जो है वो ओवरलैप हो गया, तो ये मिस आउट हो जाएगा उसके अंदर से. सो कोवैलेंट रेडियस जो होता है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा कम होता है और वैन डर वाल रेडियस काफी बड़ा होता है एक्चुअल रेडियस से. दैट्स द पॉइंट आई वांट टू से. सी, सो थिंक प्रॉपर्ली, एक ही क्लोरीन है लेकिन दो अलग अलग जगह पे उसके दो डिफरेंट स्टेट आ रहे हैं. मतलब यू कंसिडर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, यू फाइंड वैन डर वाल रेडियस वेयर दे आर प्रेजेंट एट द मिनिमम डिस्टेंस, वेयर दे हैव अ मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज लंडन फोर्स और dispersion force, which comes under the category of van der Waal force. Or you talk about directly covalent bonding where these two chlorine atoms are overlapping. So you can find both kind of radius here. Okay, but you have to remember the radius in van der Waal is always greater than the covalent radius. हमेशा याद रखना. Okay, अच्छा, थर्ड टाइप का रेडियस का आएगा वो मेटल्स में आएगा, मेटल्स में आएगा. Now in case of metals which are in solid state in nature, तो मेटल्स के अंदर क्या होता है कि मेटल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड. इन मेटल द एटम्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड टू फॉर्म अ लैटिस स्ट्रक्चर, जहां पर एक एटम दूसरे एटम से सराउंडेड रहेगा लाइक दिस. सो सपोज दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ मेटल वेयर दीज आर नथिंग बट द मेटल एटम्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द रेडियस, वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से हाफ करना है उसको. सो जब इसका हाफ करोगे आप डिस्टेंस से तो आपको एक वैल्यू मालूम पड़ेगा. अब यहाँ पर एटम्स ओवरलैप नहीं कर रहे बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. दे आर नॉट ओवरलैपिंग बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर.
So when they are contact with each other, you find the bond length in their lattice structure of a metal and divide it by 2. So when you divide this by 2, you will get a particular radius, and this radius will be called as metallic radius. Okay, for example सोडियम एटम्स है, तो ये सारे सोडियम मेटल्स हो गए, इसका डिवाइड बाय 2 करके रेडियस फाइंड करोगे, सो आपको मेटालिक रेडियस इसका मिलेगा 186 पिकोमीटर. ओके, so that will be the metallic radius of what? Sodium. But suppose if you find कोवैलेंट रेडियस ऑफ सोडियम, तो मैंने आपको बोला था कोवैलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग वगैरह होता है, तो आपने अगर सब कोवैलेंट रेडियस कैलकुलेट किया, so the covalent radius of this is nothing but the metallic radius, but if you find the covalent radius of sodium, तो due to overlapping थोड़ा रेडियस कम आना चाहिए, that is why it comes around 155 picometer. So देखो सोडियम का कोवैलेंट रेडियस 155 है, मेटालिक रेडियस 186 है, मतलब metallic radius is actually greater than the covalent radius, and van der Waals radius is also greater than the covalent radius. But आपको ये समझ में आना चाहिए कि radius of a particular atom, which is nothing but the distance to the outermost shell, yes, that's a definition, but it is very difficult to calculate in that manner. Therefore, what you do, you either calculate the distance between the two nucleus in case of metal lattice and divide by 2, or distance between the two nucleus in case of a covalent bond and divide by 2 to get the covalent radius, or you find the distance between the two same adjacent atom when they are in the molecule form and they are very close to each other, where we develop a minimum force of attraction, which is called as London or dispersion force, which comes under the category of van der Waals force, and you find the रेडियस. तो आपको वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि वहां तो कांटेक्ट में भी नहीं आ रहे एटम, बहुत क्लोज मिनिमम डिस्टेंस पे आ रहे हैं. कोवैलेंट रेडियस हमेशा कम मिलेगा बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग, एंड मेटालिक रेडियस प्रिसाइज मिलेगा बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. सो दीज आर ऑल 3 काइंड्स ऑफ रेडियस थ्रू व्हिच यू कैन डिस्कस through which you can discuss the atomic radius. Okay, so atomic radius can be discuss in covalent radius, van der Waals radius और metallic radius. अभी जैसा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके कंपाउंड ज्यादा नहीं है, तो अगर तुम उनके रेडियस फाइंड करोगे, तो फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई टेक अ रेडियस ऑफ नियॉन, so one neon atom is in contact with the another neon atom. Okay, when we talk about neon, suppose we find this, see there is a gap in between, matlab I am talking about the van der Waals radius. If I find the bond length and divide it by 2 with respect to the van der Waals radius in case of neon, the noble gas, this comes around 160 picometer. So 160 picometer is the van der Waals radius. Okay, so I'll write down here van der Waals radius for neon is 160 picometer. But if you calculate covalent radius, if you analyze the covalent radius, the covalent radius comes around 67 picometer. देखो covalent radius हमेशा कम आएगा क्योंकि overlapping है, और van der Waals radius हमेशा ज्यादा आएगा. So you need to understand this point very precisely कि radius, atomic radius को define करना है, तो जरूरी नहीं है कि atomic radius एक ही form में define होगा. It can be in covalent radius, it can be in van der Waals radius, it can be in metallic radius. Okay, wherever they require, they write down the radius with respect to a particular terms among these 3. Okay, so this is all about atomic radius. Now we're going to study about the trends in the periodic table with respect to the atomic radius. So I'll clear this up. Okay, so let's discuss trend with respect to atomic radius. So you have studied in your 10th standard that as you move from left to right of the periodic table, if you move from left to right of the periodic table, the atomic radius decreases, and as you move from top to bottom of the periodic table, the atomic radius increases. So why from top to bottom the atomic radius increases? Because from top to bottom atomic number increases, number of shell increases. So अगर number of shells बढ़ते जाएंगे तो atoms का size automatically बढ़ता जाएगा. तो ये तो बहुत simple है समझने के लिए.
Okay, as you move from top to bottom of the periodic table, atomic number increases, that is number of electrons increases, size, or you can say shell or orbit increases, therefore the size increases. So this is very easy to understand. And for example, if you talk about group 1, so group 1 में सबसे पहले lithium, then you have sodium, potassium, rubidium, then you have cesium. Francium is radioactive. So period 2, 3, 4, 5, 6. So lithium का atomic number 3 है, electronic configuration 1s2, 2s1, it has only 2 shell. So its size is around 152 picometer, the covalent radius. I'm talking about the covalent radius. Sodium, if you calculate, it has 3 shells, so it is 186 picometer. Potassium has 4, so it is 231 picometer. Rubidium has 5, 244 picometer, and cesium is 262 picometer. So if you plot a graph, suppose if you plot a graph of top to bottom of the periodic table, where you place atomic number on the y-axis and the size, the atomic size, the atomic radius more precisely on the y-axis and z on the x-axis, which is the atomic number, that is number of electrons, atomic number. So simple hai, the lithium is having what 152 and the highest is cesium. So this will be lithium, then it will be sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, you can say. So ये जो एटॉमिक साइज मिलेगा जिसमें लिथियम आएगा, फिर उसके बाद में सोडियम आएगा, देन वी हैव अ पोटेशियम, देन यू हैव अ रुबिडियम, देन यू हैव अ सीजियम. So from lithium to cesium, the size is increasing. Okay, so if you go from top to bottom of the periodic table, it is very easy to understand that atomic number increases, shell increases, and the size increases. But what about left to right? This is the most important property you need to understand. Left to right of the periodic table में क्या होता है? So to understand this, सबसे पहले I'll clear this up. अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट के बारे में बात करेंगे, which is a very important topic of discussion. इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज इससे अटैच होती है इलेक्ट्रॉनिक atomic radius से. So guys, you need to understand a term called as Z effective, which is called as effective nuclear charge. Try to understand what I'm saying here. Okay, Z effective is an effective nuclear charge. Now, what is the meaning of this effective? Nuclear charge. What is this? What is this term? So this represents the force of attraction of protons, or you can say the nucleus protons on outer electrons. See, electrons are revolving in a fixed orbit around a nucleus. So when they are revolving, why they don't leave? If they are moving continuously, why don't they leave the atom and go away? Why? What's the reason for that? So there is a reason is that the electron is bonded to the nucleus by the force of attraction. Okay, and the net force of attraction between the nucleus and the electron is called as effective nuclear charge. To effective nuclear charge एक ऐसा force of attraction है. For example, you take a thread, you tie a stone and put it in a circular motion. So the thread is in the stone is under circular motion, but the thread is the force of attraction towards the center. So that is why the stone is not leaving and going anywhere. Secondly, it is not going inside the nucleus. The electron is also revolving around the nucleus like the stone is revolving. The stone doesn't hit my hand. What is the reason for that? Because when it's under circular motion, there will be two forces: centripetal force, which is towards the center, and centrifugal force, which is outward. So जब एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास दो फोर्स है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक जो हो जाएगा टेंजेंशियली आउटवर्ड, दैट इज सेंट्रिफ्यूगल फोर्स. तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. सिंपल. सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outer electron,
the net force of attraction, I'm talking about the net force of attraction is called as effective nuclear charge, which is denoted by Z effective. Okay, so effective nuclear charge is a force of attraction between the nucleus and the electron. You need to understand this. A question is, how will you calculate? How are you going to calculate the effective nuclear charge by the nucleus? There is a proton and the electron. कैसा calculate करेंगे? ठीक है, और वो calculate करने पे हमको क्या समझ में आएगा? तो first of all remember कि effective nuclear charge is a force of attraction between the nucleus and the outermost electron. अगर force of attraction बढ़ेगा, if the force of attraction increases, what happens to the electron? They will come close to the nucleus and shell from the center. The size, the radius will decrease. मतलब अगर effective nuclear charge increase होगा तो size of the atom decrease होगा, because obvious बात है, effective nuclear charge is nothing but the force of attraction. So समझो ये एक न्यूक्लियस है या आउटर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सपोज 2 है, ठीक है, और एक दूसरा एटम है, वो उससे आपको छोटा दिखाई दे रहा है. This is the nucleus, this is the electron. Here the effective nuclear charge, the force of attraction is 3. So where the effective nuclear charge is more, अगर effective nuclear charge ज्यादा हो जाएगा तो size of the atom will be less. Common sense है, because it's a force of attraction. The force of attraction की वजह से atom थोड़ा squeeze होगा और उसका size कम हो जाएगा. So you need to remember this point in your mind, कि if the Z effective increases, atomic size decreases. Okay, keep this in mind. The most important. So as the effective nuclear charge increases, the size of the atom decreases, the force of attraction between the nucleus and the electrons. Now question is, sir, how will you calculate this effective nuclear charge? How are you going to calculate this? So remember, this is not there for your NEET or JEE for the calculation, but I'm showing you the calculation just to make you understand. See, effective nuclear charge, which is a force of attraction between the nucleus and the outermost electron, is Z minus sigma, where sigma and Z are two terms. Z stands for atomic number, that is number of protons. You need to calculate number of protons, remember, because atomic number का सबसे पहला definition number of protons से ही आया, तो that is the number of protons. You need to remember this. Okay, and what is sigma? Sigma stands for electron shielding or electron screening, which give rise to shielding effect. Now, what is this shielding effect? ये क्या है, क्या shielding effect and shielding constant क्या है? So I'll try to make you understand this. Suppose this is a nucleus of an atom which consists of a proton here. Okay, this is the first shell which is having suppose 2 electrons, and this is the second shell which is having a 1 electron. So there are 2 shells. Okay, just to make it simple. Now suppose this nucleus have 3 protons here. It has 3 protons. So हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं लिथियम जैसा कि सपोज इट है कि न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है. ये फर्स्ट शेल है which has 2 electrons, second shell has 1 electron. Now each and every electron is under the force of attraction of nucleus. That is why वो कहीं बाहर तो जा रहा नहीं है, is under the force of attraction of proton. इसके लिए कहीं वो जा नहीं रहा है. Now these are inner electron and this is outer electron. So the inner electron, can you see a gap between inner electron and outer electron, which is called as nodes? The probability of finding the electron is 0. Now this inner electron and outer electron will have a force of repulsion. Will experience a force of repulsion. What kind of repulsion? This outer electron, which is negatively charged, and inner electron, which are negatively charged, the inner electron will repel outer electrons. Inner electron will repel outer electron. Matlab here there will be repulsion.
तो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन साथ में तो है ही नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। सो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस इनको पुल करने की कोशिश कर रहा है और ये रिपेल कर रहे हैं। आपको ऐसा समझना है कि न्यूक्लियस is exerting the force of attraction and the inner electron is repelling outer electron. Okay, so inner electron जो repel करते हैं outer electrons को, वो actually में न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं. Okay, so the inner electron is repelling outer electron, and in other words we can say the inner electrons, that is the electron right now present in the first shell, is actually decreasing the force of attraction or screening or shielding the force of attraction exerted by the nucleus on the outer electron. तो inner electron न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम करते हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग में इजीली लॉस हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. क्यों कम है? बिकॉज इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को दे आर रिपेलिंग, शील्डिंग, screening from the force of attraction of the nucleus, and this is called as shielding effect or screening effect. ये दिमाग में याद रखना कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. अच्छा, खुद के समझो सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ ना कुछ रिपल्शन एक्सर्ट करता है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. बिकॉज ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो वो साथ में एक साथ एटम के अंदर है, तो आपस में दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नेगेटिवली चार्ज. सो दिस repulsion of the inner to the outer electron is called as shielding or screening effect. तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल तो एटम एक्सपांड होना चाहिए, मतलब एटम का साइज ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा. तो शील्डिंग इफेक्ट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, याद रखने का, इट इज अ फोर्स ऑफ व्हाट, रिपल्शन, where the inner electrons try to shield the outer electrons from the nuclear pull, that is a nuclear charge. तो मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लूं and I subtract the shielding value, I will get the net force of attraction. Okay, the net force of attraction on the outer electron or on any electrons. So basically the effective nuclear charge is nothing but Z minus sigma, where Z is nothing but number of protons which are exerting the force of attraction, and sigma is that shielding value which is experienced by that particular electron, which is a force of repulsion exerted by the inner electron on the outer electron or the electron in the same shell in the different orbitals, or in the same orbitals. तो वो रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आउटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस करेगा तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो अगर शील्डिंग बढ़ता है तो साइज ज्यादा नहीं, छोटा होगा, बिकॉज शील्डिंग इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो इफ द शील्डिंग इंक्रीजेस, रिपल्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. इफ द रिपल्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, साइज ज्यादा स्क्वीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इनर इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं. आप ऐसा सोचोगे इसको पुश कर रहे हैं कि तू बाहर ही रहे, ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक मत आ. ओके, so now let us try to understand the trend from left to right in case of SNP block using this formula. SNP block, पहले हम लोग SNP block देखेंगे. So वो समझने के लिए सबसे पहले स्लेटर रूल याद रखना. अब ये रूल, अब ये जो भी कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कैलकुलेशन जेईई नीट के लिए नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. स्लेटर रूल क्या बोलता है अबाउट द शील्डिंग, अबाउट सिग्मा, दैट इज शील्डिंग कांस्टेंट, यू कैन से कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s और p ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन अगर nth शेल में है, nth शेल मतलब द लास्ट शेल, ओके, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो शील्डिंग, वो रिपल्शन एग्जिबिट करेंगे 0.35 का उनका वैल्यू है. अगर वो n-1 मतलब सेकेंड लास्ट शेल में थोड़ा अंदर की तरफ है, तो वो एग्जिबिट करेंगे 0.85, और अगर वो n-2 थर्ड लास्ट शेल में, तो वो एग्जिबिट करेंगे रिपल्शन शील्डिंग 1 का. सिमिलरली अगर आप d और f ऑर्बिटल्स की बात करो,
सो सेम शेल में 0.35, अगर n-1 है, n-2 है, दैट विल बी 1, शील्डिंग वैल्यू 1 लेना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, ओके, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो 0.3 हो जाता है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इन द फर्स्ट शेल, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू हो जाता है 0.3, बाकी सबके लिए रहेगा। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन पीरियड 2। सो पीरियड 2 की हम लोग अगर बात करेंगे तो पीरियड 2 में वी हैव लिथियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आता है, फिर सीधा ग्रुप 13 आता है, बीच में गैप होता है। ओके, मैं एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम, सॉरी, टॉक अबाउट दिस लिथियम। देखो पीरियड 2 में देखो, फोकस करो, लिथियम बेरिलियम, फिर एक गैप आएगा, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस। सो लिथियम, बेरिलियम, then you have boron atomic number 5, carbon atomic number 6, then nitrogen atomic number 7, oxygen atomic number 8, fluorine atomic number 9 and neon atomic number 10। अगर मैं इनकी एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट देयर एटॉमिक रेडिया, देयर एटॉमिक रेडियस, ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस ही हम लोग देखेंगे। सो कोवैलेंट रेडियस लिख रहा हूं मैं, कोवैलेंट रेडियस, वैंडावाल रेडियस नहीं, वैंडावाल रेडियस बड़े होते हैं। कोवैलेंट रेडियस लिथियम का है 152 पिकोमीटर, सब पिकोमीटर में। बेरिलियम is 111 picometer. This is boron is 88 picometer. Carbon is 77 picometer. Nitrogen is 74 picometer. Oxygen is 66 picometer. Fluorine is 64 and neon is 67. थोड़ा साइज बढ़ जाता है। तो see, as you move from left to right of the periodic table, left to right of the periodic table in case of S and P block elements, S and P block elements. Okay, I'm focusing on S and P block element. See properly. In case of S and P block element, as you go from left to right, the size decreases. मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा साइज का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, if I make a graph here, this is the atomic size, atomic radii and the atomic number. So this is lithium, sorry, this is lithium, ओके, Li फर्स्ट, देन लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऐसा। दिस इज नियॉन इन द एंड एंड दिस इज द फ्लोरीन, थोड़ा छोटा। सो दिस विल बी द ट्रेंड, बट क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज कैसे कम होता है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। We know that effective nuclear charge is a force of attraction. As effective nuclear charge increases, size decreases. Secondly, shielding is a force of repulsion by inner to the outer electron or the electrons in the same m orbital और सेम शेल, इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करते हैं, एंड इट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसके वजह से साइज ज्यादा कम नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, एक आपको एक आप किसी भी चीज को पुल कर रहे हो और दूसरा कोई चीज को पुश कर रहा है, तो वो ज्यादा क्लोज आपके नजदीक नहीं आ सकता, बिकॉज पुशिंग इफेक्ट भी है। तो शील्डिंग बढ़ने से साइज ज्यादा नहीं बढ़ता। बट अगर शील्डिंग सेम रह गया, इफ द शील्डिंग इज सेम, if shielding is same and effective nuclear charge increases, so force of attraction increase होगा, तो there will be a large decrease in size. Let's talk about this S and P block, जिसमें ये केस देखने को मिलता है। See, lithium का size is 152 and fluorine, which is the last element, that is, मतलब last element is neon, but you talk about this non-metal fluorine group 17, it is 64. तो 52 से 64 में देखो there is a large difference in their size. तो क्वेश्चन ये कि इतना साइज डिफरेंस कैसा है, 152 लिथियम है। So let's try to understand this. I'll clear this up. I need this part. Okay, so effective nuclear charge is the force of attraction, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, आपको समझ में आ जाएगा। Let's talk about lithium. So lithium, this is the nucleus of lithium, having what, 3 proton, then first shell having 2 electrons, and the second shell is having 1 electron, okay, or 2 electrons यहाँ पर है। Okay, now if I am calculating its effective nuclear charge, effective सारा डिस्टेंस क्या है, सेंटर से लेके आउटर तक, यही आपका रेडियस है मेन। तो अगर ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है,
इसी से हमको कंपेयर करना है। तो इसी इलेक्ट्रॉन पे वी फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेट्स फाइंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अगर मैं ये फाइंड करूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हियर, let's try to understand how will you calculate. So lithium has an electronic configuration of 1s2 2s1। तो ये हम लोग ये 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस पे कितना न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कैलकुलेट करना है। तो सी प्रॉपर्ली, सेकेंड शेल इज योर एन शेल एंड फर्स्ट शेल इज n-1। तो n-1 मतलब एक कम है 2 से। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं लिथियम के लिए इस इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग यानी सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो सिग्मा वैल्यू विल बी, सी प्रॉपर्ली, फॉर SnP सेम शेल के लिए, लास्ट शेल के लिए 0.35, बट लास्ट शेल में एक ही है जिसका हम लोग फाइंड कर रहे हैं। n-1 हुआ तो 2, तो क्या होगा? 0.85। So 2 electrons are present in n-1, so it will be 2 into 0.85। So अगर मैं 2 into 0.85 कर दूंगा तो मुझे एक certain value मिलेगा। Okay, that value is 1.7। तो सिग्मा वैल्यू लिथियम का 1.7 है। अब मैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड कर रहा हूं, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो साइज, जिसका साइज डिपेंड कर रहा है, यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट है, दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स इज ऑफ 1.7। ठीक है, एंड z इफेक्टिव इज z माइनस सिग्मा। मतलब z क्या है यहाँ पर? एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, तो इसमें 3 प्रोटॉन है, माइनस 1.7 करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 1.3 का। मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे लिथियम में 1.3 है। 1.3 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। शील्डिंग कितना है? 1.7 का। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग बेरिलियम ले लेते हैं। सो बेरिलियम, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। ठीक है, तो ये बेरिलियम का न्यूक्लियस हो गया। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम हैविंग 4 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो थोड़ा एटम छोटा बना है, obviously lithium से छोटा होता है as you go left to right। so we are talking about the effective nuclear charge on these outermost electron। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ना पड़ेगा। चलो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं और इसका शील्डिंग फाइंड कर लेते हैं। तो ये n शेल हो गया, दिस इज अ सेकेंड शेल, और ये क्या है? n-1 विच इज अ फर्स्ट शेल। अभी n शेल में इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स कौन एक्ट कर सकता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में ही है। तो n शेल के लिए वैल्यू क्या है? 0.35। सो 1 into 0.35। ठीक है, मतलब खुद के शेल का एक इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसको रिपेल करेंगे। तो चलो 2 into, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर है? n-1 में, तो 2 into 0.85 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 into 0.85 मैंने निकाल लिया। नाउ व्हेन आई कैलकुलेट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू बेरिलियम, दैट कम्स टू 2.05। तो सिग्मा वैल्यू मतलब इसका रिपल्सिव, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सिव फोर्स है, जो उसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है, वो कितना है? 2.05। लेकिन हमको फाइंड करना है Z इफेक्टिव। तो देखते हैं Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज Z माइनस सिग्मा। तो इसका Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 4 माइनस 2.05 अगर आप करोगे तो नाउ ऑब्वियस बात है, you don't get a value, you will get a value of 1.95। मतलब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.95 का है। सो 1.95 इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो गाइस ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है न्यूक्लियस का? 1.95 का। और ये जो लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हुआ? 1.3 का। So as force of attraction increases, the electron will move close to the nucleus and the size will decrease। इसके लिए बेरिलियम का size is 111 and lithium is greater than beryllium because effective nuclear charge, see properly, is more in lithium as compared to beryllium। So अगर मैं सबके Z इफेक्टिव की बात करूं तो लिथियम का आपको Z इफेक्टिव मिल रहा है 1.3, बेरिलियम का आपको Z इफेक्ट कितना मिलेगा? अभी मिला हमको 1.95 मिल रहा है। अगर आप वही बोरॉन का निकाल लोगे सेम मैनर में किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो 2.6 मिलेगा। ओके,
अगेन सेम थिंग, आप उसमें कंपेयर कर रहे हो तो 2.6 की तरफ आ जाएगा. So when you keep on calculating the effective nuclear charge from left to right of the periodic table, it will increase. अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो I'll write down here. If you talk about fluorine, the atomic number of fluorine, फ्लोरीन का जो atomic number है वो 9 है. Think about it. 9 है. Try to calculate it right now. 9 है. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है. मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो सेकेंड शेल में है, मतलब ये आपका एन शेल हो गया. तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है. और 7 पे हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, मतलब बाकी 6 उसको रिपेल करेंगे. मतलब अगर ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा, और 9 प्रोटॉन्स है इसके अंदर, एटॉमिक नंबर 9 है. तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे, समझो ये इलेक्ट्रॉन पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो Z इफेक्टिव हम लोग कैसा निकालेंगे? यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा. तो सिग्मा देखो, इसको रिपेल कौन करेगा? इसी के शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इंटू 0.35. सेम शेल है ना, n के लिए 0.35 हो गया. फिर n-1 मतलब 2, ये कितना है? 0. प्लस 2 इंटू 0.85. ओके. सो अभी अगर मैं ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर रहा हूं, if I'm doing this calculation, that 2 into 0.85, that comes to 1.7, और इसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? 6 into 0.35, तो that comes to how much? 3.8. मतलब इसका शील्डिंग कितना है? 3.8 का है. और अगर मैं Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो क्या होगा? Z माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 9. ओके. सो अगर मैं यहाँ पर 9 माइनस 3.8 कर दूंगा तो आंसर आएगा 5.2. सो सी, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर पुल कितना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे? 5.2. So as you go from left to right of the periodic table, the effective nuclear charge, the force of attraction is increasing. Try to understand. Force of attraction is increasing. Okay. And shielding क्या है? Shielding is nothing but the force of repulsion. So ये आपको समझना चाहिए कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इन केस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, इन केस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. बट हमेशा एक चीज याद रखना, एस और पी ब्लॉक में हमेशा याद रखो, देखो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे हो वो सब आउटर शेल में जा रहे हैं. ठीक है, सबके सब आउटर शेल में. और आउटर शेल का रिपल्शन 0.35 का, लेकिन इनर शेल का रिपल्शन 0.85 का. तो इनर शेल का रिपल्शन हमेशा कांस्टेंट रह रहा है. देखो, लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन इज 2,3. सो 2,1 2,2 2,3, जैसा आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा रहा है. इट इज नॉट गोइंग इन द इनर शेल, इट इज गोइंग इन द आउटर शेल. ये याद रखना है. सो दैट इज व्हाई इनर शेल का जो मेन शील्डिंग है, जो मेन रिपल्शन है, वो लेफ्ट टू राइट कांस्टेंट रहेगा. सो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? आउटर शेल में जा रहा है. तो इनर शेल का शील्डिंग जो रहेगा, रिपल्शन रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा. एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो शील्डिंग इनर शेल का कांस्टेंट है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बढ़ता जा रहा है. बट इनर शेल का रिपल्शन कांस्टेंट है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है. इसके लिए एटम स्क्वीज होता जा रहा है. इसके लिए यू सी अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड फ्लोरीन. ओके, लिथियम एंड फ्लोरीन. एंड गाइस, अगर आप इसकी बात करोगे नियॉन की, तो साइड सडनली बढ़ जाता है, बिकॉज नियॉन इज 2,8, सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड है. कंप्लीट फिल होने की वजह से उनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएंगे. So that's the reason. That's the reason कि why neon has sudden increase in size is because of inter-electronic repulsion, overcrowding. पूरा भर गया है, इसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए आपस में एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, और एटम क्या है? थोड़ा ही बढ़ेगा. So because of inter-electronic repulsion, the neon size suddenly increase. So I'll just erase this part. And now you write down your few points for you to remember right now. The first is that as Z effective increases,
size of the atom decreases, और left to right वही होता है. Okay, second shell, sigma is nothing but shielding constant. What is shielding? Shielding is a force of repulsion on a electron which you are going to study, मतलब inner electron और outer electron पे repel कर रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात क्या है, अगर शील्डिंग की हम लोग बात करें तो बेस्ट शील्डिंग, सबसे अच्छा शील्ड, आउटर इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छा शील्ड कौन कर सकता है? हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सामने. देन p ऑर्बिटल इज लिटिल फार, d ऑर्बिटल और थोड़ा फार है, f ऑर्बिटल तो बहुत ही दूर है. तो थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये s ऑर्बिटल है, वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस. यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स रखे, p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कहीं, p ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, p ऑर्बिटल्स में बता रहा हूँ, सिर्फ डबल शेप है बट वो सब चीज नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. जस्ट इमेजिन कि p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फार, d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फार, f ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द शेल, ये इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टडी करना है. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छा गार्ड, शील्ड कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल. व्हाई? बिकॉज देखो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के सामने आ जाएंगे. ठीक है, ये देखो, ये डायरेक्टली ये ना सामने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसके? न्यूक्लियस के. सिंस ये सामने आ गए, ऑब्वियस बात है, सपोज यू वांट टू हिट अ स्टंप, आपने बॉल लिया, स्टंप पे फेंकना है. ठीक है, अगर मैं आपके एग्जैक्टली सामने आके खड़ा हो गया तो आपका तो व्यू पूरा ब्लॉक हो गया है, और हमारे बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, व्यू पूरा ब्लॉक हो गया, मतलब मैं उस स्टंप को प्रॉपरली गार्ड कर पा रहा हूं इफ आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू यू. तो अगर मैं आपके सामने आके एकदम खड़ा हो गया, वेरी क्लोज टू यू, सो आई कैन गार्ड द स्टंप फ्रॉम योर थ्रो प्रॉपरली. बट इफ आई मूव फार अवे, अगर मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा तो आपको व्यू थोड़े एंगल से मिल सकता है, और दूर चला गया तो फिर बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है स्टंप की तरफ. तो सेम थिंग, the electrons which are present in s orbital are very close to the nucleus. Since they are very close to the nucleus, they can shield, they can protect, they can guard the outermost electron more strongly. इसके लिए हमको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर मैं शील्डिंग या रिपल्शन की बात करूं, which is a force of repulsion, or you can say shielding is a effect which decreases the effective nuclear charge, क्योंकि effective nuclear charge को वो काटता है, it will cut that effective nuclear charge. तो better shield, shielding के लिए सबसे अच्छा shielding कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन इन s, then electron in p, then electron in d and in f. मतलब d and f provides what? Poor shielding. And best shielding सबसे ज्यादा strong, or you can say more precisely you can write down a strong shielding. Strong shielding कौन provide करता है? s orbitals में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं. और shielding इफेक्ट बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा. याद रखने का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट. तो बेस्ट शील्डिंग इफेक्ट कौन देगा? s ऑर्बिटल. और सबसे पुअर शील्डिंग कौन देता है? DNF. DNF के electrons are very far away from the nucleus. You need to remember this. Okay guys, third point. Okay, as we move for s and p block, effective nuclear z effective nuclear charge increases more. ठीक है, सिग्मा जो है फॉर इनर शेल इज कांस्टेंट, इनर शेल के लिए वो कांस्टेंट हो जाता है, इसके लिए शील्डिंग इतना बढ़ता नहीं अलोंग विद द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्यों इनर शेल के लिए? बिकॉज आपने देखा लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, मतलब हमेशा वो इनर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है जो ज्यादा शील्ड करते हैं. देखो उनका वैल्यू भी ज्यादा है 0.85. बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो सेम शेल में होते हैं वो 0.35, मतलब उनका रिपल्सिव फोर्स कम होता है जो खुद के शेल में है, लेकिन जो अंदर के शेल में है वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे आउटर शेल को. ठीक है, सो दैट इज द रीजन as you go from left to right of the periodic table, since the inner shielding remain constant, मतलब shielding तो वही है but effective nuclear charge बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, it is increasing lot. So that's the reason the atom squeeze and atom size बहुत छोटा है. इसके लिए लिथियम बहुत बड़ा है और फ्लोरीन बहुत छोटा है.
और फ्लोरीन में न्यूक्लियर पुल देखो बहुत ज्यादा है 5.2 का, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली पुल कर सकता है किसी दूसरे एटम से भी इफ देयर इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। Okay guys, so this is all about left to right of the periodic table with respect to S block। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बात करता हूं डीएनएफ ब्लॉक की। ओके सो डीएनएफ ब्लॉक कहाँ दिख रहे, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। आपने पूरा फंडा समझ लिया होपफुली कि एस एंड पी ब्लॉक as you go from left to right effective nuclear charge increase to a greater extent as compared to shielding, मतलब shielding से ज्यादा effective nuclear charge बढ़ रहा है। इसके लिए एटम बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है और उनकी प्रॉपर्टी चेंज होते जा रही है। लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे 1.3 का पुल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और फ्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5.2 का है। तो लिथियम कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन व्हेन फ्लोरीन कम क्लोज टू इट, क्योंकि फ्लोरीन में पुल ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई लिथियम को आप मेटल बोलते हो, इलेक्ट्रॉन लूजिंग, फ्लोरीन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन गेनिंग। मतलब प्रॉपर्टीज भी देखो साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई अक्रॉस द टेबल। अभी मैं थोड़ा सा बात करता हूं आपसे अबाउट डीएनएफ ब्लॉक। सो आई विल क्लियर दिस अप। पहले मैं आपको दिखा दूं डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, सी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज एलिमेंट्स। ठीक है, समझ जाओगे आप, थोड़ा सा भी समझोगे तो समझो, प्लस इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पार्ट समझ में आ जाएगा। टॉक अबाउट दिस। तो वी हैव दिस सीरीज, आपको याद होगा ये सीरीज को हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं बिकॉज देयर इज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3D1, 3D2, 3D3। ये कौन सा सीरीज है, 4D सीरीज है। लैंथेनम, यहाँ पर लैंथेनम होता है, लैंथेनम से मर्क्यूरी तक 5D सीरीज, और ये कौन सा सीरीज होता है हमारा 6D सीरीज जो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। लेकिन लैंथेनम के बाद में हाफनियम नहीं आता, आपको याद होगा लैंथेनम के बाद में ये 14 एलिमेंट्स यहाँ से आते हैं, और एक्टिन के बाद में 14 आते हैं जिसको हम लोग लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबको एक साथ कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं 3D सीरीज की बात करता हूं, बराबर देख लोगे तो 3D सीरीज इज फ्रॉम स्कैंडियम टिल जिंक इज अ 3D सीरीज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्कैंडियम से जिंक का साइज। चलो I'll clear this up, I'll take that page. So if I talk about 3D series that is in fourth period, तो हमारा पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन। ओके, देन उसके बाद में आ जाएगा कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छा, अगर मैं इनके रेडियस की बात करूं, जिंक द एटॉमिक नंबर इज 30। तो स्कैंडियम इज 164 picometers size, 164 picometer. Then you have titanium 147 picometer, this is 135 picometer. Chromium is 129, 29, ये 137 थोड़ा बढ़ जाता है because of the completely filled shell। ठीक है, वो देख लेंगे। Iron is 126, it becomes 125, is 125, and your 128, 128, and is 137. See, size suddenly increased. Okay, so let's talk about this atomic radius and try to understand कि atomic radius में इतना variation, atomic radius बराबर देखोगे from scandium till zinc 164 minus 137 अगर हम लोग करते हैं तो ये 7 हो गया, 2, 27 पिकोमीटर में पूरा टेबल खत्म हो गया, 27 पिकोमीटर। और आपको याद होगा लास्ट डिस्कशन में हम लोग ने किया था लिथियम, लिथियम का साइज था 152 पिकोमीटर, और लास्ट में हमारा फ्लोरीन था दैट इज 64 पिकोमीटर। सो 152 और 64 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 88 पिकोमीटर का गैप आता है। सोचो, लिथियम से फ्लोरीन एलिमेंट्स में 88 पिकोमीटर गैप है, लेकिन स्कैंडियम से जिंक, समझो आप कॉपर पकड़ो, जिंक तो मतलब साइज सडनली इंक्रीज होता है, जिंक तो नोबल गैस जैसा साइज इंक्रीज कर देता है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लेकिन अगर तुमने कॉपर तक के पकड़ा 128 पिकोमीटर लिया तो 128 लोगे तो ये और कम हो जाएगा। सो दिस बिकम्स
36 पिकोमीटर। ओके, 164 से जाएगी तो, और अगर मैं 137 ले रहा हूँ जिंक, तो मतलब अब समझो 36 पिकोमीटर यहाँ से यहाँ तक के साइज, और जिंक तक के हम लोग आ गए 130, तो 27 पिकोमीटर लगता है, इधर से इधर तक 27 पिकोमीटर लगता है। तो सी प्रॉपर्ली, फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट 27 पिकोमीटर में पूरा टेबल खत्म हो गया 3D सीरीज का। But if you talk about S block, lithium to fluorine, so there is 88 picometer. It means that in case of S and P block, the size difference between the element is more. तो S and P block में size difference element का ज्यादा है, और D block और F block में size difference बहुत कम है, और बराबर D block में देखोगे तो सेंटर में तो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, सी प्रॉपर्ली ऑलमोस्ट सेम। रीजन क्या है उसका? रीजन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, सोचना, बराबर से सोचना। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s2 3d1। सो 4s2 3d1 को मैं ऐसा लिखता हूं अरेंज करके, 3d1 4s2। स्कैंडियम के बाद में वेनेडियम आता है, एटॉमिक नंबर टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, दैट इज आर्गन 3d2 4s2। अब साइज कैसा डिसाइड होगा? साइज इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s। 4s इज द आउटर मोस्ट शेल। बट सी प्रॉपर्ली, आप स्कैंडियम से टाइटेनियम लिखते हो, आफ्टर टाइटेनियम यू राइट डाउन वेनेडियम, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, इट इज आर्गन 3d3 4s2। फिर वेनेडियम के बाद में आता है क्रोमियम, क्रोमियम 24, that is argon exception case 3d5 4s1। तो सी प्रॉपर्ली, इफ यू टॉक अबाउट दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो उतना ही है, या एक कम हो गया, उतना ही है, लेकिन देखो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज 3d इज द इनर शेल, पेनल्टीमेट शेल। So in transition element, when the inner electron increases, so inner electron outer electron को repel करते हैं। तो can I say that along with, in case of, देखो अब 21, 22, 23 ये सब क्या प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, बट प्रोटॉन्स के साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर शेल में नहीं जा रहा है एस और पी ब्लॉक की तरह। बिकॉज अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये सब की बात करोगे तो 2,1, 2,2, 2,3 इनमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, बट इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेगा, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब सोचो, फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शील्डिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा ही है, तभी तो साइज छोटा है। बट क्या है, ये स्कैंडियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग का, मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लेक्चर को और लेंदी नहीं करूंगा, एक सिंपल तरीका तुमको सिखाता हूं समझने का। इफ यू टॉक अबाउट दिस स्कैंडियम, चलो मैं स्कैंडियम की बात कर रहा हूँ, ये स्कैंडियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ओके, जेड इफेक्टिव। तो ये हो जाएगा सपोज उसका सिग्मा वैल्यू, दैट इज शील्डिंग, रिपल्शन फोर्स। आप जा रहे हो उसके बाद टाइटेनियम, तो टाइटेनियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अच्छा खासा बड़ा है, देखो शील्डिंग भी बढ़ रहा है थोड़ा सा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। इसकी शील्डिंग में और कम बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, दिस इज द शील्डिंग ऑफ स्कैंडियम। फिर उसके बाद में आप जाते हो वेनेडियम में, ओके। सो वेनेडियम में बात करोगे तो वेनेडियम के अंदर दिस इज अगेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज मोर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, शील्डिंग, देखो शील्डिंग थोड़ा और बढ़ गया। फिर उसके बाद में आप जा रहे हो क्रोमियम में, तो क्रोमियम में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और ये शील्डिंग थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब शील्डिंग देखो क्या हो रहा है, अलॉन्ग विद द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग तो बढ़ा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा ज्यादा रहेगा। फिर सिमिलरली मैग्नीज, अब आयन, कोबाल्ट, निकल में देखो क्या हो रहा है, साइज बढ़ ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। मतलब अगर मैं बात कर लूँ समझो आयन की, सो आयन में दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पर उसका कहीं शील्डिंग आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट में, तो ये अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो ये शील्डिंग हो गया। फिर उसके बाद में ये अगर मैं निकल में बात कर रहा हूँ तो दिस इज इफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या हो गया, शील्डिंग। मतलब यहाँ पर आने के बाद शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर गए, काउंटर बैलेंस कर गए, इसके लिए साइज इंक्रीज ही नहीं हुआ, इट इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग बॉट सेम। फिर कॉपर और जिंक में जाने के बाद, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन
3d10 4s2 देखो कंप्लीटली फिल्ड मतलब वही नोबल गैस जैसा, दैट इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से साइज थोड़ा बढ़ जाता है। सिमिलरली कॉपर भी वैसे देखो बढ़ता है, आर्गन 3d10 4s1 एक्सेप्शन केस। सो 3d10 होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जब आपस में लोग रिपेल करेंगे तो थोड़ा दूर दूर जाएंगे, साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। बट यहां पर देख लो क्या हो गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ DNF ब्लॉक या डी ब्लॉक में आप बात करो, so as you move from left to right of the periodic table in case of what D block elements, so we can write down for D block along with effective nuclear charge shielding also increases, and in center, see, in center or in the middle, effective nuclear charge balance by sigma, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड बाय सिग्मा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग क्या हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस, जिसकी वजह से साइज बढ़ता ही नहीं है। तो अगर मैं 3D सीरीज का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, सी 3D सीरीज में ग्राफ ऐसा दिखाई देगा आपको। इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस 3D सीरीज, so this is scandium 164 picometer, scandium, titanium, vanadium, क्रोमियम, मैंगनीज थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बिकॉज मैंगनीज में 4s2d5 है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल थोड़ा सा, देन उसके बाद में थोड़ा कम हो जाएगा, देन दैट इज Fe यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ कोबाल्ट आ गया, यहाँ निकेल आ गया। तो ये देखो ये पार्ट है ना ऑलमोस्ट सेम है, फिर थोड़ा कॉपर और जिंक बढ़ेगा, मतलब जिंक यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बट दिस पार्ट इफ यू कैन सी इज दिस पार्ट कि Z effective is balanced by sigma, therefore the size doesn't increase much. That's the thing you need to understand for D block. और S and P block के लिए क्या है कि as you go from left to right, effective nuclear charge is very much high as compared to shielding, इसके लिए साइज बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ शील्डिंग भी बढ़ता ही जा रहा है, मतलब रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ रहा है अलॉन्ग विद अट्रैक्टिव फोर्स, तो ऑब्वियसली वो एटम को ज्यादा स्क्वीज होने देगा नहीं, इसके लिए बीच में आने के बाद तो दोनों काउंटर बैलेंस हो जाते हैं और एटॉमिक साइज सेम हो जाती है। ओके, सो दिस वाज द ट्रेंड फॉर 3D सीरीज। अब इसके नीचे जो है 4D सीरीज आएगी। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो 4D सीरीज में ध्यान से देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो 4D सीरीज स्टार्ट्स विथ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 4D सीरीज वापस से, सी प्रॉपर्ली। इट्रियम से स्टार्ट होगी, सी 5th पीरियड में देखो, इट्रियम, जिरकोनियम, वाई, ZR, NB, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, कैडमियम तक के जाने वाला है। सो दैट इज बेसिकली दी 4D series. So we're going to talk about this 4D series now. So if you talk about this 4D series, so 4D series has yttrium, zirconium, फिर नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। देखो इट्रियम का साइज कितना है, इट्रियम का साइज 180 है, ऑब्वियसली स्कैंडियम से थोड़ा ज्यादा रहेगा बिकॉज डाउन ग्रुप जाओगे तो शेल बढ़ता है। फिर जिरकोनियम is around 160 picometer, फिर ये हो गया 146 picometer, ये हो गया 139 picometer, ये हो गया 136 टेक्नीशियम 136 picometer, that is 134 picometer, रुदेनियम, रोडियम is 137 picometer, पैलेडियम sorry rhodium is 134, then 144 and suddenly size 154। तो कैडमियम तो वही जिंक की तरह इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कंप्लीटली फिल्ड, बिकॉज कैडमियम क्या है 4d10 5s2 कंप्लीटली फिल्ड, और सिल्वर भी एक्सेप्शन केस कॉपर की तरह देगा 4d10 5s1, इसके लिए उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। बट यहाँ देखो साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 180 से 154 तक खत्म हो गया टेबल। तो अगेन द सेम रीजन कि अलॉन्ग विद द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इंक्रीजेस। बट मैं आपको 4D 3D क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीजन सुनो। जब आप 5D सीरीज में जाओगे, अब सस्पेंस आ रहा है, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। ये तो बहुत सिंपल है कि अगर मैंने 3D और 4D की बात कर दिया तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया था ये 3D सीरीज का था। सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ 3D सीरीज। नाउ आई विल मेक अ ग्राफ ऑफ 4D सीरीज। तो अब 4D सीरीज का साइज तो देखो थोड़ा ज्यादा ही है, तो ऑब्वियसली 4D सीरीज यहाँ कहीं स्टार्ट होगा, ऐसे ही कुछ जाएगा सेम, और यही सेम
फॉलो करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्रियम गोइंग टू व्हाट, कैडमियम। ये समझ में आ गया मुझे। 4D सीरीज थोड़ा ज्यादा है सर साइज के अंदर, एटॉमिक साइज 4D सीरीज की ज्यादा है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं आपको 5D सीरीज। तो 5D सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, लैंथनम, एटॉमिक नंबर 57। लैंथनम के बाद में आते हैं लैंथेनॉइड्स। आपको याद होगा लैंथेनॉइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से, दैट इज एटॉमिक नंबर 58। सीरियम, 59 प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, एसएम, यूरोपियम, ईयू, गैडोलिनियम, ठीक है, टर्बियम, डिस्पोसियम, होल्मियम, अर्बियम, देन थूलियम, टीएम, देन वाईबी, इटरबियम, ये इट्रियम है, वाई ये इटरबियम है, एंड लास्ट वाला क्या आता है, लुटेशियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 71। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर हाफनियम आता है डी ब्लॉक का 72, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था, तो 72 आ गया। तो 57 से 72 डायरेक्ट नहीं आता, 57 के बाद ये आता है। 57 में जो लैंथेनम है उसकी साइज क्या है, द साइज ऑफ लैंथेनम, द साइज ऑफ लैंथेनम इज 187। ठीक है, ऑब्वियसली वो इट्रियम से ज्यादा होगी। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ कहीं प्लॉट कर देता हूँ, देखो इधर प्लॉट कर देता हूँ, इधर थोड़ा ज्यादा है भाई, ये लैंथेनम है। ठीक है, एल लैंथेनम हाउ मच, 187। बट टेल मी, क्या लैंथेनम के बाद में हाफनियम आता है, नहीं, लैंथेनम के बाद में हाफनियम नहीं आता, लैंथेनम के बाद में आता है सीरियम। And as you go left to right of the periodic table, what happens to the size decreases, guys? Size decreases. But याद रखना, in case of DNF block, along with the effective nuclear charge, shielding also increases, but not to that great extent. But बढ़ता है, but ज्यादा नहीं। ठीक है, अब लैंथेनाइड्स का साइज क्या है, लैंथेनाइड्स हैज अ साइज, सीरियम का अगर मैं साइज बोलूंगा तो सीरियम इज 183, प्रोमीथियम इज 182, यहाँ पर भी एक सीन है 181, here it is what 181, 180, देखो एक एक पिकोमीटर का गैप चल रहा है, 180, यहाँ पर साइज सेम होता जा रहा है 180, फिर यहाँ पर 178, डिस्पोसियम बिकम्स 177, 176, लुटेशियम की हम लोग लास्ट वाले की बात करते तो 174, 174 के बाद में जो हाफनियम आता है, दैट हाफनियम कम्स टू 159। देखो हाफनियम आया 159, मतलब जिरकोनियम के जितना ऑलमोस्ट। फिर हाफनियम के बाद में आता है टैंटेलम, टैंटेलम इज 146, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो नियोबम के सेम, नियोबियम एंड टैंटेलम इज सेम। मोलिब्डेनियम, सी मोलिब्डेनियम इज 139, जो मैंने यहाँ लिखा है मोलिब्डेनियम। अच्छा, यहाँ पर टैंटेलम में 5D सीरीज में आफ्टर टैंटेलम यू हैव टंगस्टन, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम, गोल्ड, मर्क्यूरी। अच्छा, अब टंगस्टन का साइज देखोगे तो टंगस्टन का साइज कितना हो रहा है, 139, सेम। रिदेनियम, द साइज ऑफ रिदेनियम इज 137, ऑलमोस्ट सेम। ऑस्मियम द साइज इज 135, ऑलमोस्ट सेम। एक पिकोमीटर का गैप, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, 10⁻⁻12 मीटर है, कुछ नहीं है वो। ठीक है, इरिडियम साइज, सी प्रॉपर्ली, इरिडियम इज 136, ऑलमोस्ट सेम। प्लैटिनियम की अगर मैं बात करूं तो प्लैटिनियम 138 हो रहा है, देखो बराबर। ठीक है, 138। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो AU इज 144, ये देखो सिल्वर के जितना आ रहा है। एंड ये लास्ट में मर्क्यूरी 157। तो कैन यू सी दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टैंटेलम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रुदेनियम, रेनियम, टेक्नीशियम, रेनियम, रुदेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सबके साइज सेम हो गए हैं। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, दीज आर कॉल्ड एज केमिकल ट्विन्स। ये सबको हम लोग बोलते हैं chemical twins. So why they are called as chemical twins? Because the size is same. Now why the size is same? Because lanthanum के बाद में the lanthanoids will contract. This is called as lanthanoid contraction. इनके साइज कम होते जा रहे हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में हाफनियम एनॉल चालू हो रहा है। अगर लैंथेनम के बाद में डायरेक्ट हाफनियम होता तो हाफनियम 183 होता, तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होता। तो अगर मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाना है तो लैंथेनम के बाद ग्राफ सीधा यहां से चालू होगा और ये रेड लाइन पे ही फॉलो करेगा।
एंड लास्ट में थोड़ा सा मर्क्यूरी आपको ज्यादा दिखेगा। तो देखो यहाँ पर 3D सीरीज और 5D, ये कौन सा सीरीज था, 4D सीरीज, और ये कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज। 4D सीरीज और 5D सीरीज की साइज आफ्टर लेंथनम सेम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, एंड दे आर कॉल्ड एज केमिकल ट्विन्स। सो रीजन है व्हाई, बिकॉज देयर इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इन बिटवीन। अगर लेंथेनॉइड्स नहीं होते तो हाफनियम लेंथेनम के बाद में डायरेक्टली इट वुड बी हाफनियम एंड हाफनियम वुड बी 133, तो उनका ग्राफ ऊपर आता, बट ग्राफ सेम क्यों हो रहा है, कोइंसाइड क्यों कर रहा है, because of lanthanide contraction the size on 4D and 5D become same। और lanthanide को भी बराबर देखो, in case of lanthanide you have a gap of only 1 picometer। why you have 1 picometer, think about it, क्योंकि lanthanoids में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो S में, P में, D में नहीं जाते एटॉमिक नंबर बढ़ने पे। if the atomic number think if the atomic number increases the electrons in F block goes to F subshell। F subshell provides पुअर शील्डिंग, मतलब वो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस वहां पर डोमिनेंट होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करने की वजह से साइज ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए देखो 1 पिकोमीटर, ये ऑलमोस्ट सेम साइज दिख रहा है बीच में। So because of the electron entering into F subshell in case of F block, the size doesn't increase much. Okay, the size doesn't decrease much. क्यों? Because electrons in F block elements, it goes in F subshell which provides poor shielding, extremely poor shielding। तो poorest shielding का मतलब ये होता है कि आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से गार्ड ही नहीं किया, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना चालू करेगा ज्यादा एक्सटेंड में, ड्यू टू विच द साइज डजंट इंक्रीज मच। इसके लिए बिकॉज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ ब्लॉक के अंदर दे विल बी अ वेरी poor shielding of F electrons। So because of poor shielding of F electrons, the size doesn't decrease much in spite of increasing atomic number। Okay, poor shielding हो रहा है, इसके लिए ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर पे सारा साइज बढ़ नहीं रहा है उनका, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है, ज्यादा होल्ड करके, बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक। और लैंथेनॉइड्स के बाद में आते हैं ये हाफनियम, इसके लिए इनके साइज सेम हो जाते हैं। अगर लैंथेनम के बाद में डायरेक्ट हाफनियम आता तो 183 होता, obviously size बड़ा होता। So remember, because of lanthanide contraction in between the size of 4D series and 5D series after yttrium and after lanthanum, तो इट्रियम लैंथेनम का साइज डिफरेंस है, लेकिन जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलाडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सेम, एंड दे आर कॉल्ड एज केमिकल ट्विन्स बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन ऑफ atomic radius with respect to the entire periodic table। okay guys, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी आयोनिक रेडियस की। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन आयोनिक रेडियस, तुमको इस पे क्या याद रखना है आयोनिक रेडियस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयंस या तो पॉजिटिव होंगे दैट इज कटायंस, या तो नेगेटिव होंगे दैट इज अनायंस। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट आयोनिक रेडियस फ्रॉम अगर आप बात करोगे आयनिक रेडियस की लेफ्ट टू राइट, तो आयनिक रेडियस का मतलब लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, वो सब चीजें कॉमन है, ठीक है। आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का पार्ट कॉमन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कटायन आयन कंपेयर विद द न्यूट्रल एटम। मैं एक बात कर रहा हूँ सोडियम एटम की। सोडियम इज 2,8,1, मतलब कितने शेल्स है इसमें, 3 शेल है, और सोडियम का मेटालिक रेडियस है 186 पिकोमीटर, ठीक है। सो 186 पिकोमीटर इज द साइज ऑफ सोडियम एटम। लेकिन अगर मैं से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये बन जाएगा Na+2,8, बिकॉज एक प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाएगा। नो, इट हैज ओनली 2 शेल। एंड ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इमेजिन करो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 1 प्रोटॉन का डोमिनेंसी है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज है, और वो 1 प्रोटॉन क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और पुल करेगा, तो Na+ का साइज, एक तो शेल गायब हो गया तो साइज कम हो गया Na+ का, क्योंकि ये 3 शेल से 2 शेल हो गया तो साइज कम हो गया। सेकेंडली,
Secondly, because of the loss of electron, one proton become dominant in its charge and it will exert force of attraction, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज और स्क्वीज हो जाएगा। इसके लिए Na प्लस का साइज होता है 98 पिकोमीटर का, देखो बहुत छोटा होता है इससे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कटायन साइज, द साइज ऑफ कटायन इज ऑलवेज लेसर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन एटम की बात करूं तो क्लोरीन इज 2,8,7, ठीक है, और क्लोरीन एटम का साइज कोवेलेंट रेडियस है 99 पिकोमीटर का। लेकिन अगर मैं बात करूंगा Cl माइनस, Cl माइनस मतलब आप इस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ये 2,8,8 हो गया, तो जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा और वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब Cl माइनस का जो साइज है देख लो बराबर से कितना बढ़ गया, 181 पिकोमीटर हो गया। मतलब क्या हो गया, व्हाट डज इट इंडिकेट कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू अ न्यूट्रल एटम, द एटम विल एक्सपांड बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से हम दूर जाते हैं, एक्सपांशन होता है। सो वी कैन से कि साइज ऑफ अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। ओके, तो अनायन साइज हमेशा न्यूट्रल से बड़ा रहेगा और कटायन साइज हमेशा न्यूट्रल से कम रहेगा। देन दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक रेडियस। अब मैं बात कर रहा हूं रेडियस ऑफ या रेडियाई ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है, I'll write it properly, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब ये होता है, आइसो मतलब होता है सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक n⁻⁻3, ऑक्सीजन (-2), फ्लोरीन (-1), सोडियम (+1), Mg(+2), एल्यूमिनियम (+3), ये सारे स्पीशीज देखो आप बराबर से, ये स्पीशीज को देखो, अगर इन लोगों को आप अगर बराबर से देखोगे और स्टडी करोगे ना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 7 + 3 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हो गए 10। फ्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 9, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो गए 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1 लॉस, इसके लिए 10। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 लॉस, इसके लिए +2, इसके लिए 10। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 लॉस हो गए, इसके लिए 3 पॉजिटिव चार्ज, तो अब कितने बचे 10। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इन सब का कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीज इज 2,8, दैट इज 2 शेल। तो क्या इन सबके साइज सेम है? नो। शेल सेम होने से साइज सेम होना जरूरी नहीं है, आपको चार्ज देखना जरूरी है। देखो याद रखो, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है मतलब वो अनायन है और किसी पे पॉजिटिव चार्ज है वो कटायन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनायन या और साइज हमेशा ज्यादा होता है, कटायन साइज हमेशा कम होता है। तो एक शॉर्टकट दे देता हूं कि एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस। ओके, या और क्लियरली I'll write down for isoelectronic species, size is directly proportional to negative charge and inversely proportional to positive charge. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोटॉन्स डोमिनेंट होगी, और प्रोटॉन क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस पे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और उसको स्क्वीज कर देंगे। और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्राउड ज्यादा हो गया तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगे नेगेटिव चार्ज, तो साइज उतना बढ़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, size increases. As the electron decreases, proton become dominant. If the proton become dominant, they will pull the electron and it decrease the size. मतलब इन सब में से अगर मैं सबकी साइज की बात करूं तो ऑब्वियस बात है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में उसका साइज ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा साइज होगा N3 - 171, 140, ये हो गया 136, ये हो गया 98 पिकोमीटर्स,
ये है 78 picometers और ये है 57 picometers. देखो, these are the size. In spite of having same number of shell, they don't have a same size. And in fact, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, which have a greater size, और जिसमें नेगेटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, which have a least, that will have a least size. So this was the radius of isoelectronic species. So guys, I have discussed how will you find the radius of an atom, that is covalent radius, metallic radius, ionic radius, or van der Waals radius. And secondly, what is a trend from top to bottom, what is a trend to left to right in case of S and P block, in case of D and F block, what is Z effective nuclear charge, what is shielding value, what is shielding constant. Then we have discussed the atomic radius, ionic radius size, and the isoelectronic species. So I hope you understood the entire part. Please make a note of it, all important points. I'll see you in the next lecture, and we'll discuss the next physical property, that is ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. Till then, take care. Bye.